یا اللہ مجھے دولت مند بنا اور اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے آپ. یہ تو ہے طریقہ پڑھنے کا. اور اس کے بعد آمین کہہ کر آپ نے درود شریف پڑھ کے اٹھ جانا ہے مصلی پہ سے. مزید اور کسی قسم کی دعا نہیں مانگنی اس وقت, صرف رزق کے لیے, صرف رزق کے لیے, دولت کے لیے. ٹھیک ہے. آپ یقین رکھیں اس بات پہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول کو یہ فرمایا. اور سب سے زیادہ سورہ واقعہ پڑھنے کا جو حکم ہے وہ ہے خواتین کو, یعنی کہ بیٹیوں کو, بہنوں کو, بیویوں کو, ماؤں کو, ان کو سب سے زیادہ حکم ہے. جن کے گھر کے جو سربراہ ہیں وہ جاتے ہیں باہر رزق کمانے کے لیے, ان کی گھر کی خواتین پڑھیں. بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ بہت پریشانی ہے, پیسے کی تنگی ہے. تو انہوں نے کہا کیا تم نے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیوی کو کیا یہ نہیں بتایا کہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے, اور سورہ واقعہ پڑھ کے دعا مانگے تمہارے لیے دولت مندی کی. صحیح. تو یہ بات. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر احد کی پہاڑی کے برابر بھی تم پر قرضہ ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا. دیکھیں وہ پھر آپ نے وہ جو ایڈ کیا نا دعا میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خزانے غیب کے, تو وہاں سے تو پھر وہ چاہے وہ جتنے بھی قرض ہوں وہ صرف اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, اور کہاں سے دے رہے اللہ تعالیٰ وسیلے یا ذرائع جو بھی بنا رہے وہ پتہ نہیں چلے گا. تو یہ کہ پورے ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے, اور انشاءاللہ کہ جو طارق صاحب آپ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا. جو آپ خود بھی پڑھیں اور ساتھ میں گھر کی جو خواتین ہیں, خواتین جو ہیں ان کو بھی کہیں, ان کو بھی کہیں. اچھا جی عامر صاحب آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف, اور ہم بات کر رہے تھے اسٹریس یا ڈپریشن کو لے کر. بہت سارے لوگ جن کے بارے میں میں نے کہا کہ جو بیمار نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہر وقت ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو انہیں مستقل پریشان کرے, جبکہ انہیں وہ چیز کے بارے میں آئیڈیا بھی نہیں ہے. ان کے لیے آپ کیا بتائیں گے؟ میں نے یہ ابھی آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایسے لوگ یا تو راستے میں سے کسی ایسی چیز پہ سے جو کہ جادو کا اتار کیا ہوا ہوتا ہے, یا تو اوپر درخت پہ باندھی ہوئی ہوتی ہے یا رستے میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے, اس پہ سے گزر گئے یا اس کے نیچے سے گزر گئے تو وہ جادو جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو گیا, یا کسی نے دشمنی کے طور پر جادو ان پر کیا ہوا. اچھا مطلب یہ جادو کی بات ہو رہی ہے, میں ایک چیز اس پہ کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی جادو کر بھی نہیں سکتا, نہ کروا سکتا ہے, کہ یہ بہت چیز ہے کہ جی آئے دن ہر کسی کو ہم بول دیں کہ جی ان پہ جادو ہے, ان پہ جادو ہے, ان پہ جادو ہے, ان کی فیملی نے ان سے جالسی میں ان پر کچھ کروا دیا. تو کیا واقعی یہ ہو سکتا ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے, اتنا آسان ہے جادو؟ اصل میں دیکھیں کرنا آسان تو خیر نہیں ہے, لیکن جو جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں, کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی, ان کا پھر کسی دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا. صحیح. کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہتا. صحیح. کسی کو بھی نقصان پہنچانا, انسان کو نقصان پہنچانا, انسانیت کو نقصان پہنچانا, وہ تو اسلام سے تو خارج ہو ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد اور جناب آج جو ہمارا ٹاپک ہے, زیادہ تر جو ہمارے پاس آج جو کالز آئیں گی وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں ڈپریشن آ جاتا ہے. جاب کا مسئلہ تھا طارق کو, تو عامر صاحب ڈیفینیٹلی وہ ان کو اسٹریس اور ڈپریشن بہت زیادہ ہوگا, اور وہ نا امیدی والی کیفیت میں بھی چلے جائیں گے. اور اگر یہ جو ڈپریشن والا ٹائم ہے, نا امیدی والا ہے, تو یہ اگر بہت زیادہ ٹائم لے لے تو وہ ایک طرح سے انسان مایوس ہو جاتا ہے. اچھا وہ جو ایک خاتون جنہوں نے اپنے اولاد کے حوالے سے بات کی, وہ بھی ایک ڈپریشن والی کیفیت ہے, شدید ڈپریشن ہے یا بیماری کے حوالے سے. تو میرے خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں آ کر مل جاتی ہیں اور یہ ڈپریشن سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایسے کوئی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ آ کر ملیں ہم سے تاکہ ہم آپ کا ہاتھ دیکھ سکیں اور آپ کو صحیح طور پہ ڈائیگنوز کر سکیں کہ پرابلم آپ کے ساتھ ہے کیا, تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جب آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے تو اللہ بھی ان کی تقدیریں نہیں بدلتا جو اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ خود سوچیں, اپنے لیے ٹائم نکالیں, خود کو ٹائم دیں, تو ڈیفینیٹلی آسانیاں زندگی میں ہوتی ہیں, کیونکہ بیٹھے بٹھائے سب کچھ نہیں ہو جاتا. بے شک اللہ تعالیٰ نے, وہ ہم نے بڑی ایک خوبصورت بات پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے نصیب میں اس کا رزق لکھا ہوا ہے کہ جس کو کتنا رزق ملے گا. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں, اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا رزق لکھا ہوا ہے, بس وہ جی اوپر سے آئے گا اور ہم کھا لیں گے اور بس یہ زندگی گزر جائے گی. تو اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے, ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ہماری کچھ ایفرٹس شامل ہوتی ہیں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی مجھے علی رضا خان کہتے ہیں. علی رضا کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, آپ کی دعائیں آپ کو, انا سلمان, عامر صاحب کو, تمام دیکھنے والے کو
जैसी ईद ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत हमारी तरफ से भी, और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत खुश और आबाद रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत पसंद आया। जी क्या कह रहे हैं अली रजा? आपका कोट और हेयर स्टाइल आमिर साहब को बहुत पसंद आया आज। अच्छा बहुत शुक्रिया। और अना जी की ड्रेसिंग की क्या बात है। थैंक यू सो मच अली रजा, थैंक यू सो मच। अली रजा ये बताइए कि कभी कभार ऐसा होता है डिप्रेशन में जा रहे हैं और मायूस हो गए? बिल्कुल होता है, जिंदगी पार्ट ऑफ लाइफ, मगर मैं दुरूद शरीफ का सहारा देता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आमिर साहब से पूछना था ना जी कि मतलब ये कि दुनिया और आखिरत की नेमतें हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, बताइएगा। दोबारा बताइए, सवाल रिपीट कीजिएगा। दुनिया और आखिरत की नेमत हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्या अमल करें? दुनिया और आखिरत की नेमतें कैसे? अच्छा कि क्या? ओके ओके अली रजा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। जी आमिर साहब, खूबसूरत सवाल है अली रजा भाई का, और इसका जवाब मैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए भी और अली भाई के लिए भी खास तौर पर दे रहा हूँ। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनसे जिंदगी के किसी भी हिस्से में ऊंची आवाज में बात ना करें, और उनकी खिदमत इस तरह करें जिस तरह उन्होंने आपकी खिदमत बचपन में की है। आपकी खिदमत बचपन में की है, हम पहुंच ही नहीं सकते वहां पे। ऐसे खिदमत करनी है। मैं ये समझती हूँ कि मैं तो वहां तक नहीं पहुंच सकती। जिस तरह से स्टेज पर उनको जरूरत पड़े, आपने माथे पे बल डाले बगैर खुशी खुशी उनकी खिदमत काम करना है। दुनिया और आखिरत आप जीत गया, आपने ले ली। आमिर साहब ये एक बड़ी खूबसूरत बात, एक बड़ा खूबसूरत वाकया याद आ रहा है कि एक मैंने आपसे सुना था, इन्होंने मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें मेरे माइंड में रुक जाती हैं, जहाँ से कोई नसीहत वाला या कोई सबक वाला एक मिलता है किसी भी वाक्य से। उसमें जो जिक्र किया गया था कि एक बच्चा जो है वो एक मतलब आदमी बैठा था, उसकी माँ ने उससे पूछा कि ये क्या है, कौवा बैठा था कि ये क्या है, तो बेटे ने बताया कि ये कौवा है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद फिर उस औरत ने अपने बेटे से सवाल किया कि ये क्या है, उसने कहा कि ये कौवा है। तीसरी बार उसने फिर पूछा तो उसने कहा एक बार बताया ना ये कौवा है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से से। तो उसकी माँ ने कहा कि जब ये तुम छोटे थे ना तो मैं बार बार तुम्हारा मुंह चूमती थी और तुम्हें बताती थी कि ये कौवा है, ये कौवा है, ये कौवा है, लेकिन उसमें वो नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, और प्यार से बार बार अपने बच्चे की, तो वो जो मोहब्बत है ना वो हम बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जो माँ बाप ने हमारे लिए रातों को जाग कर। और ये चीज़ मुझे इतनी फील हो रही है अपने फादर के वाले से कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, और कि जिस तरह हमारे मुँह से बात निकलती है और वो हर चीज़ पे हाजिर, बिल्कुल कि वो बस मुँह से निकालने की बात होती है और वो कहते हैं कि जना मैं अपने बच्चों के लिए करूँ। और ये जो वालिदैन है ना, मेरा ख्याल है आमिर साहब ने आज ये बात करके बड़ी खूबसूरत हो कि जो दुनिया और हम आखिरत की जो नेमतें मांग रहे हैं और सब कुछ है, तो वालिदैन अगर पास है। अभी मैंने एक जो शो किया था उसमें भी जब मैं उन पेरेंट्स के पास गई थी जो इधी होम में बैठे हुए हैं और जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए, तो सीरियसली मेरा जो दिल है ना वो उस वक्त रो रहा था जिन बच्चों ने घर से बाहर निकाल दी। तो बूढ़े जो है वालिदैन वहाँ पर कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जब हमने बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा इस दिन के लिए, कि वो उनकी तरह से सिर्फ ये उनकी बीवियाँ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो बे टाइम खाना मांग रहे हैं या वो गुस्सा दिखा रहे हैं या वो अपने नवाज से और पोते पोतियों को कोई बात समझा रहे हैं। ये बात गवारा नहीं है बिल्कुल किसी सूरत। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, अल्लाहुम्मा आमीन। बिल्कुल यही हो सकता है, और हमें हिदायत अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी तौर पर आज के दौर की तमाम औलादों के दिलों में सच्ची मोहब्बत डाले अपने वालिदैन के लिए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। और ये तमाम जो है ना वो औलादों के वाले से। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ओहो लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं कि आमिर साहब हमारे साथ इंशाल्लाह हर हफ्ते हुआ करेंगे और उस पर आप लोग अपने इसमें आज़म मालूम कर सकते हैं अपने नाम के हवाले से। और आमिर साहब मैं चाह रही हूँ कि वो जो हम सिलसिला
हमने शुरू किया था ख्वाब की ताबीर, वो दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह कि जो कुछ हमारे गेस्ट होंगे तो उनके साथ फिर हम जो आपको बताते थे आपके हाथ की लकीरों के बारे में, तो वो सिलसिला भी हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। टाइम हमारा तेजी के साथ खत्म हो रहा है। देखते हैं जी हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं सकर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे? ठीक है, ये पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब को रात को नींद नहीं आ रही, कभी जो ख्वाब ये गंदे गंदे आ रहे हैं, क्या इसका मसला है? अच्छा ठीक है, अच्छे ख्वाब नहीं देख रहे हैं, रात को शहादत की उंगली से ऑनियर बताते हैं आप भाई साहब, आप ऑनियर सुन लीजिएगा जी। शहादत की उंगली से अपने सीने पर कलमा लिखें। अच्छा, और फिर उसके बाद आपने ये कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलकुल हक़्क़ुल मुबीन। दोबारा रिपीट कर दीजिएगा मेरे सामने। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलकुल हक़्क़ुल मुबीन। आपने ये कलमा मुसलसल पढ़ते रहना है और आप यकीन जाने कि इतनी सुकून की नींद आएगी आपको, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जालियाँ इस कलमे से बनी हुई हैं। सुभान अल्लाह। और इस कलमे की फैज़ ये है कि ये नींद की गोलियों का काम करता है, आपको सुकून की नींद, सुकून आपको मिल जाएगा, इतना सुकून मिलेगा जो सुकून आजकल है ही नहीं, वो सुकून आपको मिल जाएगा और आप सो जाएंगे। ये सोने के लिए बताया। और जो बदख्वाबी का आपने बताया कि बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, उसके लिए शहादत की उंगली से सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप लिखें, इंशाअल्लाह ताला आपको ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। ठीक है जनाब, और इंशाअल्लाह कि हम आगे अपने सिलसिले को कंटिन्यू भी करेंगे कि ख्वाब की ताबीर भी हम आपको बताएंगे। और जो लोग जिनके ज़्यादा मसले जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुके हैं या कोई ऐसे प्रॉब्लम जो ऑन एयर भी डिस्कस नहीं करना चाहते, तो आमिर साहब का नंबर जो है कंट्रोल रूम से ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और हम हर मसले के लिए, हर परेशानी के लिए, हर दुख के लिए सिर्फ अल्लाह को याद करें, क्योंकि अल्लाह ने ही इंसानों को जरिया और वसीला बनाया होता है कि वो किसी की मदद कर सकें। और हम बहुत सारी चीज़ों में जब नाउमीद होते हैं या हमें कोई मसला आ जाता है तो हम इंसानों के पीछे भागते दौड़ते हैं, इससे अपना ये काम निकलवा लें, इससे ये अपना ये काम निकलवा लें। होता क्या है, रिजल्ट सबको पता है, जानते सब हैं, लेकिन हमारे दरमियान में वो जो एक चीज़ रुक गई है ना कि ये बंदा बड़ा काम करे जी, इससे हमने अपने काम करवाने। तो अल्लाह ताला ने आपके काम कैसे, किस इंसान से और क्या जरिए बनाए होंगे वो सिर्फ अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो डायरेक्ट वहाँ पर अब कांटेक्ट करें, उसके साथ राब्ते में रहें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। टाइम भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अपने लिए आप लोगों ने बहुत बहुत सारी दुआएं भी करी, क्योंकि अल्लाह ताला से जब आप दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से करीब हो जाते हैं। और आज का शो यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके बहुत सारे मसाइल का हल और स्पेशली हर मसले का हल जो डिप्रेशन और टेंशन और इन जैसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला होगा कि वज़ू कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको बहुत सुकून महसूस होगा। आमिर साहब थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं चाहूँगी कि आप भी दुआ करें मेरे वाले साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करें, आमीन। और अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने सजेशन दे सकते हैं, आप जो सेगमेंट्स चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह का होना चाहिए, जो आप लोगों की राय है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेज इवनिंग लाउंज विद अना। इसके साथ ही टाइम हो रहा है ख़त्म। ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।